جولیا اپنے ساتھیوں سمیت بلیک شیڈو کے ایجنٹ بارکی کے اڈے میں موجود تھی۔ ان کے لیے اندر داخل ہونا مشکل ثابت نہ ہوا تھا۔ نقشہ ان کے پاس تھا اور لورا نے جو سامان دیا تھا وہ اس قدر جدید تھا کہ انہوں نے پہلے اندر بے ہوش کر دینے والی انتہائی زود اثر گیس فائر کی اور پھر سائنسی آلات کو آف کر کے وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن پورا اڈا گھوم لینے کے باوجود انہیں نہ ہی یہاں عمران ملا تھا اور نہ ہی کوئی عورت۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ ایک آدمی کو ہوش میں لے آنا پڑے گا، تب معلوم ہوگا کہ عمران یہاں کیوں موجود نہیں ہے، جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تو پھر ادھر آفس میں چلیں، اس کی کرسی پر موجود آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ مجھے وہی یہاں کا انچارج لگ رہا ہے، صفدر نے کہا۔ اسے وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آؤ، ہو سکتا ہے وہاں کوئی اور خطرناک آلہ موجود ہو جس کا ہمیں علم نہ ہو سکا ہو، جولیا نے کہا اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں لے آتا ہوں، جوانا نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس بڑے ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لورا کے آدمی کی اطلاع غلط ثابت ہوئی ہے، لیکن اس نے غلط اطلاع کیوں دی میں یہی بات سوچ رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، صفدر نے کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جوانا واپس آیا تو اس کے کاندھے پر ایک آدمی موجود تھا اور اس نے اسے لا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ میں رسی تلاش کر لاؤں، جوانا نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جوانا رسی کا گچھا اٹھائے ہال میں داخل ہوا اور پھر صفدر اور جوانا دونوں نے مل کر اس آدمی کو رسی کی مدد سے کرسی سے باندھ دیا۔ جوزف، یہ تھیلا مجھے دکھاؤ، اس کی بے ہوشی کا توڑ اس میں موجود ہے، صفدر نے جوزف سے کہا، جس نے اپنی پشت سے بڑا سا سیاہ رنگ کا تھیلا لٹکایا ہوا تھا جس میں سامان تھا۔ جوزف نے تھیلا اتارا اور صفدر کے سامنے رکھ دیا۔ صفدر نے اسے کھولا اور پھر اس میں سے ایک بڑی سی بوتل نکال کر اس نے اسے تھوڑا سا ہلایا اور اس کا ڈھکن کھول کر بوتل کا دہانہ کرسی پر بندھے ہوئے آدمی کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے بوتل ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اسے تھیلے میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی کی جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگ گئے اور پھر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھل گئیں، لیکن اس کی آنکھوں میں دھند چھائی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ دھند صاف ہوتی گئی اور اس نے چونک کر اٹھنا چاہا، لیکن رسی سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس آدمی نے انتہائی حیرت بھرے انداز میں سامنے کھڑی ہوئی جولیا اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جولیا نے اسے مخاطب ہو کر پوچھا۔ سٹوگ، میرا نام سٹوگ ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ تم بلیک شیڈو کے اس اڈے کے انچارج ہو؟ جولیا نے پوچھا تو سٹوگ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن تم کون ہو؟ یہاں داخل کیسے ہو گئے؟ سٹوگ نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ شاید حیرت کی شدید ترین جھٹکے سے اب باہر آ چکا تھا۔ ہم نے اس راستے پر جہاں سے تازہ ہوا داخل ہوتی ہے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی اور پھر یہاں کے حفاظتی انتظامات بیکار کیے اور اندر داخل ہو گئے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن تم کون ہو؟ کس تنظیم سے تمہارا تعلق ہے؟ تمہیں اس مخصوص اور خفیہ راستے کا کیسے علم ہو گیا؟ سٹوگ نے کہا۔ یہ سب کچھ بعد میں بتائیں گے، میں نے تمہیں پہلی بات بھی اس لیے بتا دی ہے تاکہ تم مزید سوالات کرنے سے بچ جاؤ۔ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہاری چیف مادام سوسن کہاں ہے اور جس پاکیشیائی عمران کو بیکاس اڈے سے یہاں لایا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ جولیا نے کہا تو سٹوگ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تو تم بھی اس ایشیائی کے پیچھے آئے ہو، لیکن تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ سٹوگ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہمارا تعلق ایکریمین ایجنسی سے ہے اور تمہارے لیے اتنا جان لینا کافی ہے۔ تمہاری مادام سوسن نے اس ایشیائی کو ایکریمیا کی تحویل سے نکال لیا تھا اور ہم نے اسے واپس لے جانا ہے، جولیا نے جواب دیا۔ مادام سوسن اس ایشیائی کو بے ہوشی کے عالم میں یہاں لے آئی تھی، لیکن پھر آدھے گھنٹے بعد اسے لے کر واپس چلی گئی اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی ہے، سٹوگ نے جواب دیا۔ کس چیز پر لے گئی ہے وہ اسے؟ جولیا نے پوچھا۔ کار پر، سٹوگ نے جواب دیا۔ تم اسے ٹرانسمیٹر کال کرو اور یہ معلوم کرو کہ وہ کہاں ہے اور ایشیائی کہاں ہے، جولیا نے کہا۔
मेरे पास उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो खुद ही रब्ता करती है, स्टोक ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुम सीधे हाथों जवाब नहीं देना चाहते। हालांकि मेरा ख्याल था कि हमारी तुम्हारे साथ कोई मुखालफत नहीं है और ना ही हमने तुमसे सिवाय मालूमात के कुछ लेना है, इसलिए तुम्हें कोई तकलीफ ना दी जाए। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ वही सलूक हो जो मुजरमों से होता है तो तुम्हारी मर्जी, जोलिया ने खुश्क लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, मुझे वाकई मालूम नहीं है, स्टोक ने जवाब दिया। जवाना, आगे आओ और इसकी ज़बान खुलवाओ, जोलिया ने मुड़कर जवाना से कहा। अभी लो मिस, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मम, मैं सच कह रहा हूँ, स्टोक ने कहना शुरू किया ही था कि जवाना ने उंगली अकड़ाकर नेज़े की तरह उसकी बाएं आंख में उतार दी और हाल कमरा स्टोक के हल्क से निकलने वाली हौलनाक चीख से गूंज उठा। जवाना ने उंगली बाहर निकाली और इस तरह इत्मीनान से खून और मवाद से लथड़ी हुई उंगली स्टोक के लिबास से साफ करना शुरू कर दी, जैसे उसने किसी इंसान की आंख खत्म करने की बजाय किसी दीवार के सुराख में उंगली डाली हो। स्टोक के हल्क से पे दर पे कई चीखें निकली और उसका जिस्म कुछ देर तक कांपता रहा और वो दाएं बाएं सर पटकता रहा। फिर उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। इसे होश में ले आओ, जोलिया ने कहा तो जवाना ने उसको थप्पड़ जड़ दिया और दूसरे थप्पड़ पर स्टोक चीखता हुआ होश में आ गया। पप पप, पानी पानी, स्टोक ने नीम बेहोशी के आलम में चीखते हुए कहा। मिल जाएगा पानी, पहले मेरे सवाल के जवाब दो, वरना दूसरी आंख भी खत्म हो जाएगी और तुम जानते हो कि अंधा होने के बाद तुम्हारी मादाम सोसन ने ही तुम्हें गोली मार देनी है, जोलिया ने सर्द और सफाक लहजे में कहा। मम, मैं बताता हूँ, मुझे पानी दो, बताता हूँ, शौक ने चीखते हुए कहा तो जोलिया ने सफदर की तरफ देखा और सफदर एक तरफ मौजूद रैक की तरफ बढ़ गया जिसमें शराब की बोतलें तरतीब से रखी हुई थीं। उसने एक बोतल उठाई, उसका ढक्कन हटाया और बोतल को स्टोक के मुंह से लगा दिया। स्टोक इस तरह घटाघट शराब पीने लगा जैसे सदियों का प्यासा हो। जब 1/4 बोतल उसके हल्क से नीचे उतर गई तो सफदर ने बोतल हटाई और उसका ढक्कन लगाकर उसने उसे एक तरफ रख दिया। स्टोक लंबे लंबे सांस ले रहा था। उसकी बच जाने वाली आंख का रंग गहरा सुर्ख हो गया था और चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार मौजूद थे। तत बेहद सफाक और जालिम हो। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं अंधा नहीं होना चाहता, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझे और मेरे साथियों को जिंदा छोड़ दोगे, स्टोक ने कहा। इस सूरत में वादा कि तुम जो कुछ बताओगे उसे कन्फर्म भी कराओगे, जोलिया ने जवाब दिया। हाँ, मैं कन्फर्म भी कराऊंगा, स्टोक ने कहा। ओके, फिर बताओ। मेरा वादा कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को रिहा कर दिया जाएगा, जोलिया ने कहा। मादाम सोसन एशियाई को यहाँ ले आई थी। एशियाई को पेगास अड्डे का इंचार्ज डेविड हेलीकॉप्टर पर पहुंचाकर वापस चला गया था, जबकि मादाम सोसन कार में आई थी। मुझे बताया गया था कि पाक एशिया सिगरेट सर्विस वालों को पेगास अड्डे का पता चल गया है और वो वहाँ रेड करने वाले हैं, इसलिए एशियाई को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है और मादाम भी यहाँ आ गई है। लेकिन फिर मादाम ने यहाँ से लेबॉर्ट्री इंचार्ज डॉक्टर कलेमट को फ़ोन किया। डॉक्टर कलेमट ने उसे बताया कि जिस फार्मूले पर काम हो रहा है वो काबिल अमल नहीं है और इमरान उसको काबिल अमल बना सकता है। इस पर मादाम ने कहा कि डॉक्टर कलेमट यहाँ आ जाए, लेकिन डॉक्टर कलेमट को एक ऐसी बीमारी है कि वो मखसूस टेम्परेचर से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए मजबूरन मादाम को उस एशियाई को वापस पेगास अड्डे पर ले जाना पड़ा। क्योंकि लेबॉर्ट्री उस अड्डे के नीचे बनी हुई है, मादाम ने हेलीकॉप्टर मंगवाया और उसी तरह बेहोशी के आलम में उस एशियाई को हेलीकॉप्टर पर सवार करके खुद भी साथ बैठकर चली गई। स्टोक ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि एशियाई इमरान और मादाम सोसन दोनों अब पेगास अड्डे पर ही हैं, जोलिया ने पूछा। हाँ, वो अड्डे के नीचे लेबॉर्ट्री में होंगे, स्टोक ने कहा। अब तुम इस बात को कंफर्म कैसे कराओगे, जोलिया ने पूछा। मैं मादाम को ट्रांसमीटर कॉल करके कह देता हूँ कि मेरे अड्डे के गिर्द मशकूक अफराद मौजूद हैं, उनके बारे में क्या हुक्म है। इस तरह तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि मादाम वहाँ है, स्टोक ने कहा। ट्रांसमीटर कॉल से हमें कैसे मालूम होगा कि तुमने पेगास अड्डे पर ही बात की है, जोलिया ने जवाब दिया।
तो फिर तुम जिस तरह का हो, स्टोक ने चौंकते हुए कहा। उसका चेहरा बता रहा था कि उससे जोलिया की जहानत पर हैरत हो रही थी। वहां अड्डे पर फोन तो होगा? जोलिया ने पूछा। हाँ, फोन है, लेकिन वो अड्डे में होगा। नीचे लेबॉर्ट्री में तो नहीं होगा। लेबॉर्ट्री में तो इंटरकॉम होगा, उस अड्डे से मुंसलिक, स्टोक ने जवाब दिया। अच्छा, तुम वहां फोन करो और इस अंदाज में बात करो कि यह बात कन्फर्म हो जाए कि मादाम भी पेगास अड्डे में है और एशियाई भी। बात जो भी चाहे करो, जोलिया ने कहा। ठीक है, मैं तैयार हूं, स्टोक ने कहा। नंबर बताओ, जोलिया ने कोने में तिपाई पर रखे हुए कार्डलेस फोन पीस की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं उठा देता हूं, सफ्तर ने कहा और तेजी से आगे बढ़कर उसने फोन पीस उठाकर जोलिया को दे दिया। इस दौरान स्टोक ने नंबर बताया तो जोलिया ने वो नंबर प्रेस करने के साथ साथ फोन पीस में मौजूद लाउडर का बटन भी ऑन कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और जोलिया ने फोन पीस स्टोक के कान से लगा दिया। हेलो, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। डेविड, मैं स्टोक बोल रहा हूँ, स्टोक ने कहा। ओह, तुम खैरियत, कैसे कॉल की? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। मादाम सोसन कहाँ हैं? मैंने उनसे एक जरूरी बात करनी है, स्टोक ने कहा। वो तो नीचे लेबॉर्ट्री में हैं, क्या बात हो गई है? डेविड ने कहा। वो एशियाई भी लेबॉर्ट्री में है, जैसे मादाम यहाँ से साथ ले गई थी, स्टोक ने पूछा। हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? इस बार डेविड का लहजा सख्त था। मैंने अपने अड्डे के गिर्द 2 एशियाइयों और 2 अफ्रीकियों को चेक किया है। मेरा ख्याल है कि ये वही लोग हैं जिनसे उस एशियाई को बचाने के लिए मादाम उसे पेगास से यहाँ मेरे अड्डे पर लाई थी। मैं इस सिलसिले में मादाम से बात करना चाहता हूँ, स्टोक ने कहा। ओके, होल्ड ऑन करो, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर थोड़ी देर बाद डेविड की आवाज सुनाई दी। हेलो स्टोक, मैं डेविड बोल रहा हूँ। डेविड की आवाज सुनाई दी। यस, स्टोक ने जवाब देते हुए कहा। मादाम का हुक्म है कि उन पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस वालों को गोलियों से उड़ा दो। डेविड की तेज आवाज सुनाई दी। मादाम ने खुद बात क्यों नहीं की? स्टोक ने कहा। वो लेबॉर्ट्री में उस एशियाई इमरान के सिलसिले में मसरूफ हैं, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओके, स्टोक ने कहा तो जोलिया ने फोन ऑफ कर दिया। मादाम, अब तो तुम्हें यकीन आ गया? स्टोक ने पूछा। हाँ, अब तुम बताओ कि पेगास के अड्डे और लेबॉर्ट्री की क्या तफसील है? जोलिया ने स्टोक से मुखातिब होकर कहा। मुझे नहीं मालूम, मैं वहां कभी नहीं गया, स्टोक ने जवाब दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। ये कैसे हो सकता है कि तुम एक ही तंजीम के मुख्तलिफ सेक्शंस के चीफ होते हुए एक दूसरे के अड्डे पर न जाओ? और पहले तुमने बताया था कि डेविड इमरान को हेलीकॉप्टर में लेकर खुद यहाँ आया था, जोलिया ने सख्त लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूँ, स्टोक ने कहा। जवाना, इसे सच उगलवाओ, जोलिया ने जवाना से मुखातिब होकर कहा। आप क्यों यहाँ वक्त ज़ाया कर रही हैं मिस जोलिया? हमें फ़ौरन वहाँ पहुँचना चाहिए, सफदर ने कहा। ओके, हम जा रहे हैं, अलबत्ता तुम यही रुकोगे, जोलिया ने सफदर से मुखातिब होकर कहा और सफदर ने उसकी बात का मतलब समझते हुए इस बात में सर हिला दिया। जोलिया बाकी साथियों समेत उस हाल कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद सफदर भी आ गया। क्या हुआ? जोलिया ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। वही कुछ जो कुछ आपने कहा था। स्टोक समेत सबको ऑफ कर दिया है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा और जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।